Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System in Sustainable Agriculture, and our course number is Agro 5222. So today we will discuss the new topic which is sustainable agriculture. So firstly we will discuss the introduction, basic introduction of sustainable agriculture and definitions. Okay. So in a simple way, we can say that the sustainable agriculture is one that over the long term, okay, so enhance environmental quality and resource base on which agriculture and depends provide for basic human foods and fibers needs. So basically it is a environmentally or economically viable and enhance the quality of life for farmers and society as whole. Okay, so this is a basic introduction. So हिंदी में हम कह सकते हैं कि जो समन्वित एग्रीकल्चर है वो क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन ऑफ दैट, एक लंबे समय तक चलने वाला एक इन्वायरमेंटल जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने वाला है, ठीक है, और एक रिसोर्स बेस्ड है। रिसोर्स बेस्ड कैसे है, जो एग्रीकल्चर बहुत से एंटरप्राइजेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, क्यों प्रोवाइड कराता है, फॉर द ह्यूमन फूड एंड देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, ह्यूमन फूड्स एंड देयर बेसिक नीड, दैट मीन्स कि हमें फूड्स के साथ साथ जो हमारे बेसिक नीड्स है, फाइबर्स हमें चाहिए होते हैं, कॉटन्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिकली हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं या लेआउट तैयार करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, इज़न्ट इट, तो वो हमें प्रोवाइड कराता है। तो एक ऐसा सिस्टमेटिक पैटर्न हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में फॉर्म करते हैं जो हमें बेसिक नीड से लेके हमारे फूड जैसी चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, इको फ्रेंडली होते हैं, जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते। ओके, सो देयर आर सम बेसिक डेफिनेशंस. So as you can see, a farming system that are capable of maintaining their productivity and usefulness to society indefinitely and must be resource conserving, socially supportive, commercially competitive and environmentally sound. Okay, so this is the basic and standard definitions for sustainable agriculture. Okay, and then sustainable agriculture means an integrated system of plant and animals production practices having a site specific application that will over the long term, ठीक है, लॉन्ग टर्म से भी ज़्यादा हम जब क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अलॉन्ग विथ एनिमल प्रोडक्शन। ओके, मतलब अलॉन्ग विथ एनिमल प्रोडक्शन मतलब एनिमल प्रोडक्शन या एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक साइट हम सिलेक्शन करते हैं और उसको फिर फील्ड पे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज सेटिस्फाई ह्यूमन फूड एंड फाइबर्स नीड्स। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि सेटिस्फाइंग फाइबर्स मतलब हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ती है तो हम कॉटन लेते हैं, कॉटन की प्रोडक्शन होता है हमारा, ठीक है। बेसिकली हमें फूड के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका प्रोडक्शन हम लेते हैं, ऑयल सीड क्रॉप का प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है, मीट का प्रोडक्शन लेते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिकली फार्मिंग सिस्टम जो चलती है बेसिकली, ठीक है, तो ये सारे जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेबल हैं, वी कैन से दैट। Okay, then the next point is enhance environmental quality and natural resources based upon which the agriculture economy depends. Okay, so agricultural economy depends in sustainable agriculture means what, कि इकोनॉमी कैसे डिपेंड होगी आपकी, अगर हम इनपुट लगाते हैं एंड वी गेट द डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज some foods material, some eggs, some meats also, so we can get the very good benefits from the agriculture production, from the farming system, we can say. Okay, so these are the basic element for sustainable agriculture. Okay, and the next is the make the most efficient use of non-renewable resources and on-farm resources and integrate
where appropriate natural biological cycles and controls. So biological, the question has been arise this term which is biological cycles. So firstly, what is biological cycles? Okay, so I hope you heard about the food chain and some kind of food web. Okay, so एक प्रोसेस चलता रहता है स्टेप बाय स्टेप कि पहले हम जिस हर एक साइकिल चल रहा है सो अगर हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अगर हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप के वेस्टेज को हम एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ मैन्योर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ मैन्योर मतलब ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं हम और जो फिर एनिमल से हमें जो मिलता है, ठीक है, जो हमारे लाइफ स्टॉक से जो मिलता है एज अ हम उसे मैन्योर यूज़ करते हैं, चाहे वो पोल्ट्री वेस्टेज हो या एनिमल हस्बेंड्री जो हमारे काऊ बुफेलो हैं उससे वेस्टेज हो या फिशरी के जो वेस्टेज हो उसको हम एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। सो ऑर्गेनिक मैन्योर हम फार्म पे यूज़ करा, उसे फार्म में हमने क्या किया, प्रोडक्शन लिया, किसका प्रोडक्शन लिया, क्रॉप का प्रोडक्शन लिया, इजंट इट। तो क्रॉप का प्रोडक्शन लिया, फिर क्रॉप के प्रोडक्शन के साथ हमें जो एनिमल्स हैं उनसे मिल्क मीट मिलते हैं, तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं दिस इज़ द कंपोनेंट, सस्टेनेबल एग्री फार्मिंग सिस्टम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, सो always remember that thing, the farming system is a basic component. Okay, as we can see the farming system is comes under the category of sustainable agriculture because we can produce the foods material through organic. Okay, organically हम food material production कर रहे हैं, crop grow कर रहे हैं, that is why we can say the biological cycle. Okay, biological cycle and appropriate natural resources like some manure, some crop residues, sewage and slugs, and some litters which we get from the cows and buffaloes, some animals also. Okay, so sustain the economic viability of farm operations. Then we have some advantages for sustainable agriculture. So the first advantages is the production cost is low, overall risk of the farmer is reduced. Why risk of the farmer is reduced? Because we can grow organically. Okay, we are growing organically, somewhere the risk bearing ability is increased for farmers because हम ऑर्गेनिकली किसी चीज़ को करते हैं तो हमें पता होता है कि अगर हमें गुड आउटपुट नहीं मिलेगा तो हमारा लॉस भी नहीं होगा, एटलीस्ट हमारा इनपुट इतना जनरेट होगा, ठीक है, जितना हमने इनपुट लगाया उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। हम कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट हमें अच्छा ना हो बट वो रिस्क होती है वो कम हो जाती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंडीशन पे। ओके, सो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी फार्मर की जो होती है वो डेवलप होती है। After that the pollution of water is avoided. Pollution of water is avoided. Why pollution of water is avoided? Because we cannot use any chemical fertilizers as well as herbicides and some pesticides also. Okay, we are using in some organic manures and sewage and sludge, some kind of natural resources as a manure, as a fertilizers, as a pesticides and insecticides. Okay, so we can use we are using all the biological products in farming system. Okay, so that is why the pollution of water is avoided, we can say. Okay, then the second thing is very little or not pesticide reduce is ensured, as I earlier told you, and then ensures both short and long term profitability. ओके, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी क्यों? क्योंकि हम बहुत से अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लेते हैं, हम कभी इंटरक्रॉपिंग करते हैं या हम कभी सोल क्रॉप कराते हैं, ठीक है, या हम कभी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेते हैं तो हमें बहुत जल्द आउटपुट मिल जाता है। कभी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉइल हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड देन सम यू सी आई always tell you that everything has pros and cons. Okay, everything has advantages and disadvantages at the same time. So we have some disadvantages also for sustainable agriculture, like since sustainable agriculture use less
क्वांटम ऑफ इनपुट नेचुरली द आउटपुट मे ऑल्सो बी लेस। ओके, इनिशियली जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फील्ड पे लाते हैं या ऑर्गेनिकली हम कहीं पे भी फार्मेशन करना होता है, हमें फॉर्म करना होता है, तो क्या होता है इनिशियली हमें आउटपुट या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हमें अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो सॉइल है, हमारी जो सॉइल केमिकल एडॉप्टेबिलिटी उसकी बढ़ गई है, ठीक है, या हमारे जो वेट्स हैं वो क्या है बहुत ही ज़्यादा अड़ियल प्रवृत्ति की हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी जो केमिकल के लिए रेजिस्टेंसी है या उसकी रेजिस्टेंसी डेवलप हो गई है। तो सही हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक हम जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं या इंसेक्टिसाइड्स, हम बायो हर्बिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो एट द सेम टाइम इनिशियली अगर हम करते हैं हमारे प्लांट पे अप्लाई, तो वो क्या करते हैं कम इफेक्टिव होते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है हम कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ही लेस टाइम, बहुत ही स्लोली हम कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है अडॉप्ट करने में टाइम लगता है किसी भी चीज़ को, एनवायरनमेंट को। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इनपुट जो हम लगा रहे हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट क्या है एग्रीकल्चर के लैंग्वेज में यील्ड है, इनपुट क्या है सीड है, बेसिकली जो हमने इनपुट लगाया विच इज़ व्हाट, जो क्या है जो सीड्स हैं, ठीक है, हमारे फर्टिलाइजर्स है, मैन्यूज है, दीज आर इनपुट काइंड ऑफ वेराइटी और एलिमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है, और जो हमें यील्ड मिला, उससे फल मिला, बीज मिला, ठीक है, वापस से, सो दैट इज द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लाइक वी हैव सम we have few examples for sustainable agriculture, like rotating crops and embracing diversity. Okay, so rotating crop means we can use crop rotation in the farming system, या फार्मिंग पैटर्न में हम यूज़ कर सकते हैं कि हम क्रॉप रोटेशन या क्रॉपिंग सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रोटेट होती रहे, इजंट इट, सो ये हम कह सकते हैं। और प्लांटिंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन हैव मैनी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग हेल्दियर सॉइल एंड इम्प्रूव पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, हेल्दियर सॉइल एंड इम्प्रूव करती है पेस्ट कंट्रोल को, क्योंकि हम कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल हम अप्लाई करते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, बट उसके लिए फिर एडॉप्टेबिलिटी हमारे पेस्ट की बनी रहती है, ठीक है, तो उस केमिकल का हम जब यूज़ अपने प्लांट पे करते हैं फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, तो वो क्या होता है इफेक्टिवली हमारे क्रॉप पे नहीं असर करता है, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं। सो बेसिकली सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट है रोटेटिंग क्रॉप्स एंड एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करता है एंड क्रॉप को रोटेट करता है। एंड वी हैव सम गोल्स ऑल्सो, सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंटीग्रेट्स 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स और as well as we can say the 3 main goals. So the first one is environmental health, economic, the second is economic profitability and the social equity. ओके, सो ये इसका क्या है गोल है हमारा, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने का एक उद्देश्य है हमारा, ओके, मोटिव है हमारा वी कैन से। एंड सेकेंड थिंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम। सो there are few components for sustainable agriculture as you can see. So first one is soil and water conservation to prevent degradation of soil productivity and effective use of limited irrigation water without leading to problem of soil salinity, alkalinity and high groundwater table. Then we have crop rotation that mitigate weeds, disease and insects problems, increase soil productivity and minimize soil erosion. Okay, so these are the component for sustainable agriculture, and the integrated nutrient management that reduce the need for chemical fertilizers, improves that soil health and minimize environmental pollution by constructive use of organics, इनऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, हमने जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हमने जो किया हुआ है या बायो फर्टिलाइजर्स का हम जो यूज़ कर रहे हैं, दिस आर द इफेक्टिव फर्टिलाइजर्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, एंड द क्रॉप रोटेशन दैट मिटिगेट्स वीट, तो हम क्या करते हैं वीट कैसे मिटिगेट करते हैं, क्योंकि कुछ हर वीट का अपना एक
ओन क्वालिटी होता है, ठीक है। कुछ वीड्स जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले सेशन में पढ़ा था कि बाइनियल वीड्स होते हैं, पेरेनियल वीड्स होते हैं, जो हर एक क्रॉप का एक पर्टिकुलर क्या होता है, वीड्स होता है जो उसी क्रॉप पे ज़्यादा लगता है, ठीक है। सो हम ऑल्टरनेट फार्मिंग करते हैं, जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग या हम क्रॉप रोटेशन अपने फील्ड पे अप्लाई करते हैं, तो वो वीड की जो एडोप्टेबिलिटी है उस फील्ड के लिए वो धीरे धीरे क्या होती है, ख़त्म होने लगती है, ठीक है। तो हम वीड को मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट करना मतलब क्या होता है, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं हम, ठीक है। सिमिलरली वो डिसीज़ एंड इंसेक्ट्स को भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। सो इससे क्या होता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, एंड मिनिमाइज द सॉइल इरोजन। सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है मतलब पर यूनिट एरिया पे अगर हम प्रोडक्शन कैलकुलेट करें तो वो हमें एज़ कम्पेयर टू केमिकल फार्मिंग अच्छी खासी मिलती है, ओके। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ sustainable agriculture, and we have few some. So integrated pest management that reduces the need for agrochemicals by crop rotations, weather monitoring, use of resistance cultivar, planting time, and biological pest control, and then the management system to control weed by preventive measures, tillage timely, intercultivation, and crop rotation to improve plant health, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट फॉर एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। सो इफ द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ओके। सो दैट यू नो तुम उस टाइम पे ये कर सकते हो कि तुम ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कंपोनेंट को उसमें इंक्लूड करते हो, ठीक है। क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फार्मिंग सिस्टम और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारा बेसिकली वो बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंसेस हैं सबके, ठीक है। उद्देश्य जो है हमारा, मोटिव जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो एक है। हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन हो या डिफाइन करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है, बट हम कंपोनेंट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। सो ये था हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके। सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस, और आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड thank you very much. Till then, be safe, take care.